Hello, friends. How are you doing? This is your friend Vivek Bajaj, co-founder of Stockage and Elon Markets. नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र। दोस्तों, ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, मार्केट, बहुत कुछ है जो फेस टू फेस में कवर हो रहा है। एंड आई एम श्योर दैट यू आर as excited as I am always to talk about various concepts related to market in this fantastic series of face to face. This is going to be 93rd face-to-face video which I'm recording with a super person, and you're going to love this series. So friends, when I started Stockage as a market participant, I thought that I'll do a very good job because I'm a real market participant. I'm not just a techie who is trying to aggregate data and presenting to you. That's the advantage of a product created by market participant. The product was created for me first, for my team, and then the product was open to everyone. And look at the kind of response people have given. More than 1 million people are using Stockage. Can you beat that? And it's such a simple tool, and it is still end of the day tool. So I strongly believe that a product created for stock market by a real market participant can add so much value to the entire ecosystem. I'm extremely happy that there is one more product in India which is very focused on options, and I simply love them. And the founder of that product is also with us for this face to face. He is a trader himself. He understands options market quite well. So we are going to have so much of learning fun, interacting with him, learning from him. And this video is specifically meant for retail traders who want to trade options and learn the art of adjustments in options. So let me welcome Raghunath Reddy from Opstra as part of this face-to-face recording. Raghu, Hi Vivek, thank you for hello. inviting. It's my pleasure, Raghu. Always good to see you, good to interact with you. And as I said, your product is fantastic, and I'm also a user of your product. And I'm wishing that we'll learn so much from you around the product which you have created. Thank you Vivek, and hi to everyone. We can also do this in English, so it can benefit both Hindi speakers as well, as well Oh as wow, English fantastic. speakers. I thought you may not be comfortable with Hindi so much, but if you can do it in English, तब तो मजा आ जाएगा. Because मेरे Yes, जो हिंदी yes. भाषी हैं, उनको थोड़ा बहुत इंग्लिश समझ में आता है, बट बहुत ज्यादा जार्गनाइज्ड इंग्लिश में उनको प्रॉब्लम होती है. बट अगर इंग्लिश करेंगे तो परफेक्ट है मेरे लिए. Okay, we'll do it in English. थैंक यू सो मच. सो फ्रेंड्स, मैंने रघु साहब को बोला कि रघु, मार्जिन सिस्टम चेंज होने वाला है और इंट्राडे मार्जिन रैशनलाइज होने वाला है, लेकिन एक्सचेंजेस ने, सेबी ने लास्ट ईयर मार्जिन बेनिफिट भी दिया है ऑप्शन स्प्रेड ट्रेडिंग के अंदर में. तो रघु को मैंने बोला कि रघु, मेरी दो ही नीड है. एक, मेरे जो लर्नर्स है जिनके पास कम कैपिटल है, वो कैसे पैसा बनाए और कैसे कम रिस्क में पैसा बनाए. अगर कोई स्प्रेड स्ट्रैटेजी, कोई ऑप्शन स्ट्रैटेजी आप बता दें. और अगर उन स्ट्रैटेजी में कुछ मिस्टेक होता है, कुछ गलतियां होती है, मार्केट कहीं और चला जाता है, यू डोंट मेक मनी इन दैट स्ट्रैटेजी, how do you adjust that strategy? So Raghu was very kind. He said that I'm going to talk about strategy, adjustment, and also I'm going to talk about adjustments in all kind of market scenario. So हम दो वीडियो रिकॉर्ड करेंगे. ये फेस टू फेस पार्ट वन है जहां पर स्ट्रैटेजी डिस्कस होगा, आपके लिए बहुत रेलिवेंट है वो स्ट्रैटेजी. और दूसरा वीडियो में हम एडजस्टमेंट्स में डीप जाएंगे. ऐसा वीडियो आपको एडजस्टमेंट में शायद यूट्यूब में नहीं मिला होगा जो रघु हमारे लिए रिकॉर्ड करेंगे. तो रघु, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट स्ट्रैटेजी फॉर रिटेल ट्रेडर्स. Yes. So today I will talk about one particular strategy. I think the retail investors will like it. तो उनको बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि इसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट कम है कंपेयर हम्म. टू बाकी स्ट्रैटेजीज जैसे शॉर्ट स्ट्रैडल हो या शॉर्ट स्ट्रैंगल हो जिसमें कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है हम्म. और उसमें रिस्क भी बहुत ज़्यादा है क्योंकि वो रिस्क डिफाइंड नहीं होता है. तो हम्म. उन जैसे इन्वेस्टर्स को जो जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स है जिनके पास कैपिटल कम है और ऑप्शन स्ट्रैटेजीज करने चाहते हैं तो उनके हम्म. लिए ये जो आयरन कॉन्डर स्ट्रैटेजी जिसके बारे में मैं बात करने वाला हूँ तो हम्म. उनको ये बहुत फ़ायदा करेगा.
Okay, that would be great. So before I get into that strategy वाला रघु, थोड़ा आपके बारे में जानते हैं कि आप, I think you are not in India, you are outside India somewhere. और आप क्या करते हैं? Yes, so I live in Milan in Italy, and my right now is main project is developing the Opstra, and I also trade. So a lot of development that we bring into Opstra, it comes from a trader's perspective. So, Hmm. and the reason for creating this product was because of my own pain points in finding information for doing these option strategies. Hmm. When I Hmm. started looking for some options tools or something like that, so Hmm. I was having difficulty to get all that information in one place. So then I thought, there could be some opportunity here, and therefore I created this tool for myself to be honestly speaking. तो वो मेन रीज़न है। तो बहुत ट्रेडिंग भी करता हूँ और इसका डेवलपमेंट भी करता हूँ। अ, और स्ट्रैटेजीज डिफरेंट स्ट्रैटेजीज का डेवलपमेंट करता हूँ, टेस्ट करता हूँ उसका, डिफरेंट ऑप्शन स्ट्रैटेजीज, और उसका एडजस्टमेंट्स करके देखता हूँ कि कैसा इसको एडजस्ट करके, अगर कोई लॉस मेकिंग ट्रेड है उसको एडजस्ट करके कैसे बाहर आ सकते हैं, या कोई प्रॉफिट मेकिंग एडजस्ट प्रॉफिट मेकिंग स्ट्रैटेजी है, अगर प्रॉफिट में है, और उसको और कैसे बढ़ा सकते हैं, और उस प्रॉफिट को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो इस टाइप का सब एनालिसिस और बैक टेस्टिंग और सिमुलेशंस वगैरह ये सब करता हूँ मैं। क्या डेडली कॉम्बिनेशन है, ट्रेडर और सॉफ्टवेयर डेवलपर जिसने टूल भी बनाया। मजा आ जाएगा आपके साथ बात करके। तो मैं आपको प्रेजेंटर बना रहा हूँ। लेट्स गो थ्रू ओके, दैट एक्सपीरियंस ऑफ strategy which you believe really works for retail traders. ओके, ओके। हेलो फोक्स, सो ये ऑप्शन स्ट्रैटेजीज फॉर रिटेल इन्वेस्टर्स है। उसमें पहला जो बात करने वाला हूँ वो आयरन कॉन्डर है। ये स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर है कि इसमें रिस्क इन्वॉल्व है, तो ये तो सब आप जानते हैं। तो प्लीज़ ये जानिए कि फ्यूचर स्टॉक्स ऑप्शंस ट्रेडिंग में रिस्क इन्वॉल्व है। तो आयरन कॉन्डर जो है, तो इट इन्वॉल्व्स सेलिंग आउट ऑफ द मनी बुल पुट स्प्रेड एंड बेयर कॉल स्प्रेड। आप थोड़ा पेशेंस रखिए, मैं आपको दिखाऊंगा कि ये कैसे बनाएंगे। ये बुल पुट स्प्रेड क्या हाँ हाँ होता है हाँ। और बेयर कॉल स्प्रेड क्या होता है, ठीक है। हम्म हम्म तो हम्म। पहले बेसिक्स में जाते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको क्रिएट करके दिखाऊंगा कि स्ट्रैटेजी कैसा बनाते हैं। जी। इसको अनदर वे में ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये नियर द मनी शॉर्ट स्ट्रैंगल है, और हम इसको हेज किया है आउट ऑफ द मनी लॉन्ग स्ट्रैंगल से। तो ये और ओके भी बहुत सिंपल हो गया। तो आप एक शॉर्ट ओके स्ट्रैंगल बनाए हैं और उसको हेज किया है आउट ऑफ द मनी स्ट्रैंगल को खरीद के। ओके। रिस्क डिफेंस स्ट्रैटेजी जो है, रिस्क डिफेंस स्ट्रैटेजी है, मगर इसमें लिमिटेड प्रॉफिट पोटेंशियल है। जितना अपना हम्म। नेटेड क्रेडिट कलेक्ट करते हैं वो अपना प्रॉफिट पोटेंशियल है, वो लिमिटेड है, हम्म हम्म। ठीक है। और या। ये जो स्ट्रैटेजी जो है, इनकम स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये बेनिफिट करता है एज द टाइम पासेस। जैसे दिन गुजरते हैं, तो आप हम टाइम डीके और ये थीटा डीके जो बोलते हैं, उससे हम्म हमको फायदा मिलता है। हम्म तो इसीलिए इसको इनकम स्ट्रैटेजी बोलते हैं। इनकम स्ट्रैटेजी इसलिए भी बोलते हैं क्योंकि इसमें आप रिस्क डिफाइन कर दिया है, हम्म। और ये आप हर महीना और हर वीक कर सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं इसको। ओके। तो इसलिए एक इनकम स्ट्रैटेजी है। और जैसे आप स्ट्राइक्स चूज करते हैं, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी जो है, आप बहुत वाइड कर सकते हैं, बहुत नैरो कर सकते हैं, और डिफरेंट वेज में बना सकते हैं इसको। और डिपेंड करता है कि जैसे आप स्ट्राइक्स चूज करते हैं, आप वाइड वाइड स्ट्राइक्स चूज करें कि ये नैरो स्ट्राइक्स चूज करें, उस पे पर डिपेंड करता है कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट इस स्ट्रैटेजी का कितना होता है, ठीक है। ओके। तो अगर वाइड स्ट्राइक्स यूज करते हैं,
तो आपका ज़्यादा होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, मगर इसमें प्रॉफिट थोड़ा कम होगा। और अगर नैरो स्ट्राइक्स यूज़ करते हैं तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, मगर आपका प्रॉफिट पोटेंशियल थोड़ा ज़्यादा होगा। तो हम्म ये हमेशा एक रिस्क रिवॉर्ड का सिनारियो होता है। जहाँ रिस्क ज़्यादा होता है रिवॉर्ड ज़्यादा होता है, जहाँ रिस्क कम होता है तो रिवॉर्ड भी कम होता है। तो ओके इसको हमेशा ध्यान में रखना है कि इससे रिस्क रिवॉर्ड गेम है। ओके ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट आयरन कॉर्नर में इट कम्स विथ हाई रिस्क हम्म वेयर यू लूज मोर देन यू मेक। आप इसमें ज़्यादा खो सकते हैं अगर मार्केट बहुत गिरता है या बहुत ऊपर जाता है, बहुत फास्ट जाता है। हम्म उस समय आप ज़्यादा लूज कर सकते हैं देन व्हाट यू कैन मेक, व्हाट प्रॉफिट यू कैन मेक। ठीक है। हम्म मगर ये जो सिनारियो है जो बहुत रेयरली आता है बट रेयरली आता है। बट क्योंकि हमने अपना रिस्क ऑलरेडी डिफाइन किया है तो हमें इसमें उतना चिंता करने की बात नहीं है कि अगर कुछ गैप डाउन और गैप अप होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तो फिर भी हमें उसमें क्षमता रखना चाहिए कि हमें स्टॉप लॉस लेना है। तो ये तो बनता ही है। हम्म श्योर तो इसमें आयरन कॉर्नर में मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एक दो एडजस्टमेंट करना पड़ता है, कभी कभी करना ही नहीं पड़ता है। अगर आपको करना है, क्यों करना है एडजस्टमेंट? एडजस्टमेंट इसलिए करना है तो आप, अगर आप ट्रेड में लूज कर रहे हैं तो उसको और थोड़ा टाइम देते हैं उस स्ट्रैटेजी को प्रॉफिट में आने के लिए, हम्म और थोड़ा रिस्क कम कर देते हैं। उसके लिए हम एडजस्टमेंट करते हैं इस स्ट्रैटेजी में। तो हम्म इससे क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट बनने का जो चांस जो है बढ़ता है, वो द odds हम्म of winning increases because of adjustments. So that's हम्म the reason हमें एडजस्टमेंट करना पड़ता है। हम्म तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एडजस्टमेंट कैसे करते हैं। हम्म अच्छा, जैसा मैंने बताया था कि आयरन कॉर्नर होता क्या है। ठीक है। या एक डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रेटजी है। डेल्टा न्यूट्रल मतलब कि एकदम सेंटर में है। अगर अगर आपको ऑप्शन ग्रिप्स के बारे में नहीं पता है तो हम्म डेल्टा जो है एक ऑप्शन ग्रीक है। ये हाँ डेल्टा ये बताता है कि आप कितना लॉन्ग है और कितना शॉर्ट है एक स्ट्रैटेजी हम्म में। हम्म तो अगर मानिए आप डेल्टा ज़ीरो है इसमें, जैसे डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी है, तो आप, इसका इसका मतलब ये है आप शॉर्ट नहीं है, लॉन्ग नहीं है, आप न्यूट्रल है इसमें। ओके तो नाइदर बुलिश नाइदर बेरिश। हम्म तो इसलिए इसको डेल्टा न्यूट्रल स्ट्रैटेजी बोलते हैं। अगर डेल्टा मान लीजिए +25 है तो इसका हम्म मतलब है आप, आपका स्ट्रैटेजी 25% ऑफ फ्यूचर लॉन्ग है। हम्म ठीक है। अगर फ्यूचर्स करते हैं ना, तो अगर हम्म अगर आप फ्यूचर्स खरीदते हैं उसका डेल्टा होता है +100। राइट तो अगर ये स्ट्रैटेजी का डेल्टा +25 है यानी आप 25% ऑफ फ्यूचर लॉन्ग है। अगर सेम वे में अगर -25 डेल्टा है तो आप हम्म 25% शॉर्ट है उस स्ट्रैटेजी में, सो या उसके डज इट अंडर। मीन तो इसका मतलब ये है कि अगर फ्यूचर 10% बढ़ता है तो ये ऑप्शन 25% बढ़े 2.5% बढ़ेगा 2.5%। यस, एग्जैक्टली। ओके सॉरी मैं आई मीन बीच डेल्टा बीच में डेल्टा की बात कर बीच रहा हूँ, बीच में ओनली शायद आपको डेल्टा। बॉदर करूंगा प्लीज डोंट माइंड। ओके, नो नो प्रॉब्लम। या हाँ, जैसे आपको बताया मैंने, इसमें प्रॉफिट पोटेंशियल जो है वो हम्म पोटेंशियल रिस्क से ज़्यादा कम है। हम्म प्रॉफिट पोटेंशियल जैसा हम्म आपको बताया था, क्योंकि हमारा ये जो प्रॉफिट जोन जो है ये ज़्यादा है, क्योंकि ये हम्म हाई प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट है इसमें। हाँ तो ये हाँ बनाने के लिए थोड़ा हमें रिस्क लेना पड़ता है। बट करेक्ट क्योंकि ये रिस्क डिफाइंड है तो हाँ इट्स ओके। मतलब इतना थोड़ा रिस्क तो लेना पड़ता है, मगर ये जो मैक्सिमम लॉस है ये आप हिट नहीं करेंगे मोस्ट ऑफ द टाइम। 90% ऑफ टाइम आप उसको हिट नहीं करेंगे, क्योंकि हम एडजस्टमेंट करेंगे और वहां तक पहुंचने ही नहीं देंगे। ठीक है। या अगर आपको बताया था कि इसमें एक है बेयर स्प्रेड है और एक है कॉल स्प्रेड है।
ठीक है। ओके। हम्म। इसको बोलते हैं क्रेडिट कॉल स्प्रेड, और इसको बोलते हैं क्रेडिट पुट स्प्रेड। ओके। तो अभी ये अभी हमने पुट लिया है 13,000, एक एग्जांपल है। जी। एक 13,100, अगर मान लीजिए मार्केट 13,760 पे है, तो हाँ। हम ले रहे हैं यहाँ पे 13,100 पुट शॉर्ट स्ट्राइक, हाँ। इसको शॉर्ट कर रहे हैं। ठीक है। हाँ। और इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, क्योंकि अगर हम्म। इसको शॉर्ट करते हैं ये रिस्क अनडिफाइंड रिस्क हो जाता है। तो हाँ। इस रिस्क को डिफाइन करने के लिए हाँ। 300 पॉइंट्स बिलो, ठीक है, हाँ। 300 पॉइंट्स बिलो 12,800 पुट का एक ऑप्शन खरीदते हैं। तो उससे हम्म। क्या होता है, आपका ये रिस्क डिफाइन हो जाता है। हम्म। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको विंग बोलते हैं। जैसे आप देखते हैं इसको, एक विंग, जी। विंग जैसा दिखता है, जैसे बटरफ्लाई का विंग जो होता है ना, वैसा दिखता है। जी। और ये जो, इसको जो डिफरेंस जो है, ये विड्थ, इसको बोलते हैं हम्म। विड्थ ऑफ द विंग। ओके। ठीक है। और सेम उसी तरीके में अब कॉल साइड भी 14,500 कॉल ऑप्शन को शॉर्ट किया है, और इसको हम्म। प्रोटेक्ट करने के लिए, हेज करने के लिए, अब 300 पॉइंट्स अवे आउट ऑफ द मनी 14,800 कॉल ऑप्शन को खरीदा है। तो इससे आपको हम्म। दोनों तरफ आपका हेडजिंग बन गया और आपका रिस्क डिफाइन हो गया। ठीक है। और ये हम्म। इक्विडिस्टेंट होना चाहिए, ये जो विड्थ जो है इक्विडिस्टेंट हम्म। होना चाहिए, नहीं तो ये तो अनइक्वल आयरन कॉन्डर हो जाता है। तो आपको ओके। सिमेट्री मेंटेन करने के लिए दोनों तरफ जो विड्थ ऑफ द विंग जो होता है मेंटेन करना है 300 पॉइंट्स ओके। निफ्टी। ओके। ठीक है। तो इसका आप में हो गया आपका 7,500 मैक्स प्रॉफिट। ठीक है। जितना आपका ठीक है। नेट क्रेडिट रिसीव हुआ, नेट क्रेडिट यानी जब आप शॉर्ट शॉर्ट किए ये 13,100 पुट और 14,500 कॉल, अब जो शॉर्ट किया है उसका आपका क्रेडिट रिसीव हुआ, और जी। उसमें से आपने जो ये दोनों ऑप्शन जो हेज खरीदा है उसको निकाल देंगे, उसमें जी। जो बच जाएगा वो आपका नेट क्रेडिट होगा, वो आपका मैक्स प्रॉफिट होगा। जी। ठीक है। जी। रघु, सॉरी। या इफ यू डोंट माइंड, मैं चाहता हूं कि आप ऑप्स्ट्रा में अभी लाइव भी एक बारी दिखाएं। ओके। ओके। तो हम जाते हैं ऑब्स्ट्रा में। हम्म। एक स्ट्रैटेजी बिल्डर है, ये ये आपके लिए फ्री है, तो कोई भी जाके कर सकता है ये। हम्म। हम्म। अ, अभी जाएंगे ऑप्शंस में। तो ये जून वाला मंथ है, तो उसको चूज करते हैं हम। एक ऑप्शन चेन आता है यहाँ पे। तो यूजुअली हम जब ये डेल्टा ये जो आयरन कॉन्डर करते हैं, तो हाँ। शॉर्ट ऑप्शन जो होता है उसका हम 20 डेल्टा को करते हैं। ये राइट तरफ जो है ये पुट ऑप्शन है, और लेफ्ट तरफ हाँ। जो है कॉल ऑप्शन है। ठीक है। हाँ। हाँ। और ये हाँ। वाला कॉलम जो है डेल्टा है यहाँ पे, और ये जो प्राइस है। हाँ। हाँ। तो अभी डेल्टा 20 करते हैं यहाँ पे, क्लोज टू 20 फॉर एग्जांपल। तो ओके। यूजुअली जब हम ये आयरन कॉर्नर करते हैं, ये 250, ये 50 स्ट्राइक वाला जो है उसको चूज नहीं हम्म। करते। ये ओके। इसीलिए चूज नहीं करते क्योंकि इसमें लिक्विडिटी कम होता है। ओके। हमेशा लिक्विडिटी जो ज़्यादा होता है ये 100 स्ट्राइक्स में होता है, जैसे करेक्ट। 300, 400, 500। तो जी। इसीलिए इसको अवॉइड करना चाहिए, नहीं तो हम्म। आपका स्लिपेजेस बढ़ जाता है या आपका इम्पैक्ट कॉस्ट बढ़ता है, हम्म। और आपका एग्जीक्यूशन भी बहुत इनफ्रीक्वेंट होता है। हम्म। तो हम्म। इसके कारण हम हमेशा ये 100 स्ट्राइक वाला स्ट्राइक्स चूज करते हैं। हम्म। तो हम्म। अभी क्या करते हैं, ये 15,300 वाला हम्म। इसको सेल करते हैं। ओके। ठीक है। और इसके नीचे 300 पॉइंट्स चले जाते हैं, जो 15,000 अपना स्ट्राइक प्राइस है उसको बाई करते हैं पुट ऑप्शन को। 300 पॉइंट क्यों किया आपने? 300 इसलिए क्योंकि अगर ये डिफाइन करता है आपका विड्थ कितना है। ओके। जैसे अभी मैं नीचे जाके दिखाता हूँ। जैसे आपका विड्थ डिफाइन करता है ये। अगर ओके। 200 पॉइंट्स भी कर सकते हैं, अगर ओके। 200 पॉइंट्स करते हैं तो आपको पैसा ज़्यादा देना होता है, तो अच्छा। आपका अच्छा। प्रॉफिट ज़्यादा नहीं बचता है यहाँ पे। अच्छा। तो अच्छा। ये रिस्क रिवार्ड सिनारियो टाइप हो गया।
गॉट इट, तो इसलिए गॉट। इसीलिए 300 पॉइंट्स चूज करते हैं। अगर ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको 300 ही चूज करना है, आप ओके। 400 भी कर सकते हैं, 200 भी कर सकते हैं। बट इस डेमोन्स्ट्रेशन के लिए हम 300 वाला चूज करते हैं। श्योर। और उसी तरीके से 20 डेल्टा कॉल ऑप्शन करते हैं, इसको बेचते हैं और 300 पॉइंट्स एक कॉल ऑप्शन को खरीदते हैं फॉर 16,400। जी, तो आपका बन गया ये सिमेट्रिकल आयरन कॉन्डर। समझ गया। ठीक है। तो यूजुअली इसका मार्जिन जो होता है, इसके बारे में बात करना है कि ये मार्जिन जो होता है एनीवेयर 60 to 70,000 होता है इसका। ठीक है। अच्छा। अ- अगर आप इसी का स्ट्रैंगल का करते हैं, आपका ऊपर 1.7 लाख तक चला जाता है मार्जिन, या सिर्फ स्ट्रैंगल। या अब सिर्फ हेजिंग खरीदने के कारण, क्योंकि सेबी ने एक लास्ट जून में एक मार्जिन बेनिफिट रूल इंट्रोड्यूस किया, जिससे अगर आप अपना रिस्क डिफाइन करते हैं तो आपको हम्म मार्जिन बेनिफिट मिलता है। तो पहले क्या होता था, ये स्ट्रैटेजीज उतना काम नहीं करते थे बिफोर मार्जिन, जो मार्जिन बेनिफिट इंट्रोड्यूस करने से पहले, क्योंकि उस समय इसका इसका मार्जिन रिक्वायरमेंट स्टिल 1.5 लाख का आसपास था ओके। बिफोर जून 2020, सेम स्ट्रैटेजी का। मगर इस मार्जिन बेनिफिट इंट्रोडक्शन के बाद ये कम हो गया, 60 to 70% कम हो गया फॉर रिस्क डिफाइन स्ट्रैटेजीज। तो इसीलिए रिटेल ट्रेडर्स को हमेशा प्रिफर करना चाहिए टू डू विथ रिस्क डिफाइन स्ट्रैटेजी। आपका रिस्क डिफाइन हो जाएगा और आपका कैपिटल रिक्वायरमेंट भी कम हो जाता है इससे। ठीक है। तो ये लाइव एग्जांपल हो गया। तो अभी जाते हैं थोड़ा इन्फॉर्मेशन और क्या है इसमें। या मैक्सिमम प्रॉफिट क्या होता है ये आपको ऑलरेडी बता दिया। जो आप नेट क्रेडिट रिसीव करते हैं, जो आपने सेल किया कॉल ऑप्शंस और पुट ऑप्शंस, और बाद में एडजिंग के बाद जो बचता है नेट क्रेडिट, वो अपना मैक्स प्रॉफिट होता है। और हम्म मैक्सिमम लॉस क्या होता है, जो विड्थ ऑफ द विंग जो होता है, उसमें से अगर आप नेट क्रेडिट निकाल देते हैं तो वो अपना मैक्स लॉस हो जाता है। जैसे अपना अभी विड्थ ऑफ द विंग क्या हो गया, 300 पॉइंट्स है, और उसमें से नेट क्रेडिट निकाल दीजिए तो अपना मैक्स लॉस हो जाता है, वो हम्म मैक्सिमम लॉस। और ब्रेक इवन क्या होता है, उसमें शॉर्ट पुट स्ट्राइक माइनस नेट क्रेडिट रिसीव्ड। तो अगर अभी इस एग्जांपल में जाते हैं, सॉरी, तो इस एग्जांपल में जाते हैं, अगर नेट क्रेडिट क्या रिसीव किया हमने, 5,200, यानी इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना होगा आपको। तो 5,283 डिवाइडेड बाई 75, सो 70 पॉइंट्स हो गया, हम्म है ना। तो आपका शॉर्ट स्ट्राइक के माइनस 70 पॉइंट्स जो होगा, वो आपका ब्रेक इवन होगा on the राइट। downside for the put. In the same way for you add plus 70, then आपका break even होगा ये on the call side, on the upside. राइट। तो ये बहुत तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है ये। और आयरन कॉर्डर कब बेनिफिट करता है, जब आपका अंडरलाइंग मूवमेंट जो होता है बहुत स्टेबल होता है या साइडवेज होता है। स्टेबल यानी अगर एक डायरेक्शन में मूव भी करता है मगर थोड़ा थोड़ा मूव करता है तो ठीक है, या साइडवेज यानी थोड़ा ऊपर गया फिर वापस आया और थोड़ा नीचे गया फिर वापस आया, तब भी ठीक है। तब ये स्ट्रैटेजी बेनिफिट करता है, क्योंकि आपका थीटा डी के होता रहता है इस स्ट्रैटेजी में, जिससे आप बेनिफिट करते हैं। और एक बेनिफिट जिससे बेनिफिट कर सकते हैं वो इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी जब कम होता है। इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी ये कुछ नहीं है, इट्स नथिंग बट आपका ऑप्शन प्रीमियम कितना ज़्यादा है। ओके। अगर आपका ऑप्शन प्रीमियम बहुत ज़्यादा है तो आपका इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है। हम्म तो अगर ये जब कम हो जाता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी, तो आपका ऑप्शन प्राइसेस भी कम हो जाता है।
जो आपका जो शॉर्ट ऑप्शन प्राइसेस जो है उसका कम हो जाता है, तो उससे आप बेनिफिट करते हैं इसमें। ओके। अगर और किस समय ये सफ़र करता है ये आयरन कॉन्डर, जब ये अंडरलाइंग जो है बहुत ज़्यादा मूव करता है और बहुत जल्दी मूव करता है। जैसे हम्म 300 पॉइंट्स मूव किया 1 घंटे में, या 200 हम्म पॉइंट्स मूव हुआ 1 घंटे में, तब बहुत डेंजरस साबित हो सकता है स्ट्रैटेजी के लिए। हम्म और दूसरा, अगेन इंक्रीज इन इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी। अगर मान लीजिए आपका शॉर्ट ऑप्शंस जो आपने उसमें जो दो शॉर्ट ऑप्शंस होता है स्ट्रैटेजी में, हम्म अगर हम्म उसका प्राइस बढ़ता है तो हम्म आपका लॉस हो जाता है उससे। तो अगर इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी बढ़ता है तो आपका स्ट्रैटेजी से लॉस हो सकता है। हम्म और फाइनली है गामा रिस्क। तो गामा जो एक ग्रीक होता है, ऑप्शन ग्रीक। गामा ये बताता है कि आपका ऑप्शन प्राइस कितना फास्ट चेंज होता है। ठीक हम्म है। और ये जो गामा जो है, नॉर्मल डेज में उतना ज़्यादा नहीं होता है। ये हम्म गामा जो ज़्यादा कब होता है, जब आप क्लोज टू एक्सपायरी है, और लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में आपका गामा बहुत ज़्यादा होता है। और हम्म इसके कारण आप ऑब्जर्व किए होंगे, लास्ट वीक ऑफ एक्सपायरी में आपका प्राइस मूवमेंट बहुत फास्ट होता है ऑप्शन प्राइसेस का, हम्म क्योंकि गामा ज़्यादा होता है। तो आप बहुत फास्ट लॉस में जा सकते हैं और बहुत फास्ट प्रॉफिट में जा सकते हैं इसमें। तो हम्म इसीलिए ये गामा रिस्क होता है जब आप ये नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटजीज करते हैं। ये गामा रिस्क हमेशा होता है। तो हमें ये लास्ट वीक जो होता है हमेशा अवॉइड करना चाहिए। हम्म हमें स्ट्रैटेजी को बंद कर देना चाहिए। लास्ट वीक एक्सपायरी मंडे तक बंद कर देना चाहिए। हम्म उसके आगे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि बहुत लॉस हो सकता है अगर थोड़ा भी अगर मार्केट मूव कर लिया आपके अगेंस्ट। ओके। और आयरन कॉन्डर इनिशिएशन कैसे करते हैं, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया। एक एक हम सेल करते हैं बुल पुट स्प्रेड, और इसको या क्रेडिट पुट स्प्रेड, पुट क्रेडिट स्प्रेड भी बोलते हैं। एंड बेयर कॉल स्प्रेड, इसको क्रेडिट कॉल स्प्रेड भी बोलते हैं। अ, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि हमने जी। बेयर कॉल स्प्रेड में प्लस डेल्टा 20 डेल्टा कॉल बेचा है, और 10 डेल्टा कॉल। यूजुअली ये 300 पॉइंट्स विड्थ होता है। जी। ठीक है, ये आपको बता दिया। फिर एक बार जी। रिपीट कर रहा हूँ। जी। तो सेम वे में आप बुल पुट स्प्रेड भी वैसे ही करेंगे। -20 डेल्टा पुट सेल करेंगे, और बाई ऑप्शन ऑफ द सेम विड्थ 300 पॉइंट्स। अगर मान लीजिए अगर यहाँ पे कॉल स्प्रेड में 200 पॉइंट विड्थ का खरीदा है आपका विंग, हम्म तो यहाँ हम्म पे भी उतना ही विड्थ का खरीदना चाहिए, जी। ताकि आप सिमेट्री को मेंटेन करें आयरन कॉन्डर का। जी। ठीक है। तो आपको पता चल गया है कि कैसे क्रिएट करना है। मगर ये इसको कब क्रिएट करना है स्ट्रैटेजी को, तो इसका एंट्री रूल्स ये है। मंथली ऑप्शंस में 30 to 40 डेज पहले, जैसे अगर अगर अभी जून एक्सपायरी है, 24th को है, तो आपको मई 24th या पहले इस स्ट्रैटेजी को क्रिएट करना चाहिए था, फॉर एग्जाम्पल। ओ। क्योंकि ओ। तभी आपको प्रीमियम अच्छा मिलेगा, और हम्म। आपको आपको इनफ टाइम मिलेगा जिसमें आपको थीटा डी के होगा। या। तो आपको एडजस्टमेंट में वो बाद में बहुत फायदा करेगा। अगर आप बहुत नज़दीक जाके करेंगे ये जी, देन आपको प्रीमियम उतना ज़्यादा नहीं रहेगा, तो एडजस्टमेंट करने में मुश्किल हो जाता है उससे। तो इसीलिए 30 to 40 डेज पहले करना चाहिए इसको, मंथली ऑप्शन से। वीकली ओके। ऑप्शंस के लिए अलग रूल्स है जो मैं आपको बताऊंगा बाद में। और यूजुअली मैं क्या करता हूँ पर्सनली, कि फ्राइडे ए वीक बिफोर एक्सपायरी ऑफ करंट मंथ, जैसे अगर अभी आप मान लीजिए आप मई एक्सपायरी में है, और हम्म जून एक्सपायरी आयरन कॉन्डर करना है आपको, तो 27 एक्सपायरी, 27 मई वॉज द लास्ट एक्सपायरी, राइट। तो उसके हम्म पहले जो फ्राइडे है, उस दिन को मैं हमेशा स्टार्ट करता हूँ मैं।
ओके। तो उससे क्या है, आपको वीकेंड का जो थीटा है, थीटा डी के जो होता है वीकेंड में, वो आपको हम्म। मिल सकता है फ्राइडे को स्टार्ट करने का। ओके। तो एग्जिट रूल्स क्या होता है इसमें? एग्जिट रूल्स क्या है? आपको 50% ऑफ इनिशियल मैक्स प्रॉफिट टारगेट करना है। तो मान लीजिए आपने स्टार्ट किया एक स्ट्रैटेजी, तो आपको 7,000 मिलेगा। ठीक है, उसमें आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा 7,000। तो आपका टारगेट उसमें होना चाहिए 50%। ठीक ओके। है, उसमें आपका टारगेट होना चाहिए 50% ऑफ दैट इनिशियल मैक्स प्रॉफिट। सो 3,500 हो जाएगा आपका टारगेट। तो ओके। मान लीजिए आप अगर 60,000 के आसपास आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उसमें, इस हम्म। स्ट्रैटेजी में, तो आपको 3,500 आप टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, तो ओके। लगभग 5% to 6%, 7% आपका रिटर्न टारगेट कर रहे हैं उसको। और सेम वे में स्टॉप लॉस भी उतना ही होना चाहिए, 50% ऑफ इनिशियल मैक्स प्रॉफिट। ओके। तो आपका आप 30,500 या जो भी 50% ऑफ इनिशियल मैक्स प्रॉफिट जब आपको मिलता है, तो उससे ज़्यादा आपको नहीं खोना है मनी। ठीक है, उससे ज़्यादा नहीं खोना है। तो क्योंकि ये इनिशियल मैक्स प्रॉफिट जो है, ये अलग अलग महीने में अलग अलग हो सकता है, क्योंकि वो डिपेंड करता है इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी पे। जैसे अपना विक्स पे हम्म। डिपेंड करता है। जब अगर हम्म। विक्स ज़्यादा होता है तो आपको मिल सकता है 8,000 तक भी। और जब विक्स हम्म। कम होता है, सिर्फ 5,000 ही मिल सकता है इनिशियल मैक्स प्रॉफिट। हम्म। तो ये वेरी कर सकता है। हम्म। ठीक है। अपने लोगों ने एग्जाम्पल में देखा था वो, एक बार मैं एक बार ऑप्स्ट्रा में जाइए, जो एग्जाम्पल अपन लोगों ने दिखाया था, हाँ। गो टू ऑप्स्ट्रा। या तो यस। इसमें अपन लोगों ने देखा था कैपिटल डिप्लॉयड अपना है, सॉरी नीचे, थोड़ा नीचे। या। यस। कैपिटल डिप्लॉयड है अराउंड 66,000 और अपना मैक्स प्रॉफिट है 5,284, मतलब ऑलमोस्ट 5,300, विच यस। इज ऑलमोस्ट 8%। या लिटिल बिट। आप यस। बोल रहे हो कि 66,000 का 5%, विच इज ऑलमोस्ट इसका 4,000। हाफ। हाँ, इसका हाफ टारगेट करना है हमें। मैक्स प्रॉफिट में हाफ, ओके। 50% टारगेट करना है। मतलब ये एब्सोल्यूट टर्म्स में कितना छोटा अमाउंट दिखता है, बट हाँ। रिटर्न ऑन कैपिटल देखेंगे तो इट्स क्वाइट हैंडसम। हाँ, 8% यस। रिटर्न ऑन कैपिटल। यस। सो एक्चुअली कुछ लोग मुझे पता है जो ये लोग 10 लॉट्स भी करते हैं। हाँ तो हाँ, इंस्टेड ऑब्वियसली। ऑफ डूइंग 10 स्ट्रैंगल्स और 10 स्ट्रैडल्स, ये आयरन कॉन्डर बना देते हैं 10 लॉट्स में। तो वो जी। कैपिटल होगा 6 to 7 lakhs, डिपेंडिंग ऑन आईवी के बेसिस पे आपको 6 to 7 lakhs का कैपिटल रिक्वायरमेंट रहता है उस समय। तो मैं तो ये बोलता हूँ कि ये 1 लॉट बेसिस पे है। तो डिपेंडिंग हाँ। ऑन आपका जितना कैपिटल डिप्लॉय कर सकते हैं, मैं तो सजेस्ट ये करता हूँ कि आपका पोजीशन साइज कम रखिए। 10 लॉट्स या। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है, मे बी 2 लॉट्स, 3 लॉट्स, उससे ज़्यादा मत कीजिए इसमें, स्पेशली फॉर रिटेल पीपल। तो हम्म। आपका रिटर्न्स स्मार्ट रहेगा इसमें। तो क्या, तो मंथ देखो, पे इसमें एक मंथ क्वेश्चन, बेसिस। इसमें एक या। क्वेश्चन है कि ये 66,000 इज माई मार्जिन रिक्वायरमेंट, इसमें मार्क हम्म। टू मार्केट का भी कैपिटल का रिक्वायरमेंट आएगा क्या कभी? हाँ, कभी आ सकता है बट उतना ज़्यादा नहीं होता है। मे बी मान लीजिए आप 70-80 मैक्सिमम लगा लीजिए उसमें, क्योंकि वहाँ तक जा रहा है मतलब कि ऑलरेडी आपका स्ट्रैटेजी ट्रबल में है, क्या आप ऑलरेडी स्टॉप लॉस हिट कर सकते हो, तो वहाँ तक जा भी नहीं सकता है वो नो, रिक्वायरमेंट एम टू एम। माय माय क्वेश्चन वाज दैट बिकॉज फिर कैपिटल डिप्लॉयमेंट मेरा एक्चुअल में 66 नहीं है, मेरे को थोड़ा मार्क टू यस। मार्केट के लिए भी बफर रखना पड़ेगा, तो हाँ, माय ऊपर रिटर्न ऑन थोड़ा बफर कैपिटल रखना होगा। माइट गो डाउन। यस। सो एटलीस्ट माय सजेशन वुड बी एटलीस्ट कीप 80,000 लाइक दैट, क्योंकि यहाँ पे आपका 80,000। मैक्सिमम लॉस जो है, मान लीजिए 17,000 है, तो आपका 65 प्लस 17 कर लीजिए, तो वो या आपका बफर हो जाना चाहिए। तो 80 पे अगर मेरे को 5,000 रुपये आ रहे हैं, तो आई मीन हाँ। लॉजिकली आई एम गेटिंग अराउंड से थ्री। 6% रिटर्न। हाँ। और अगर मैं आधा उसका वो रख लेता हूँ, प्रॉफिट में रख देता हूँ, तो हाँ। आधा मतलब 3% रिटर्न। सो यस। मंथली 3% रिटर्न
is expected in this strategy, right? या यूजुअली यस। Okay. यूजुअली क्या होता है कि ये जो मैक्स प्रॉफिट जो है, क्योंकि हम बहुत नज़दीक में कर रहे हैं इस जनवरी का, अगर हाँ थोड़े हाँ पहले हाँ। करते होते ये 7-8 थाउजेंड ऐसा होता है इसका मैक्स प्रॉफिट। अच्छा अच्छा। और कैपिटल डिप्लॉयमेंट तो सेम होता? हाँ, कैपिटल रिक्वायरमेंट सेम होता है। हाँ हाँ। अच्छा, आप बैक डेट करके दिखा सकते हैं क्या था पहले, इफ यू डोंट माइंड? बैक डेट इसका नहीं दिखा सकता हूँ मैं आपको। आ, उसका मई का दिखा नेक्स्ट सकता मंथ, हूँ। नेक्स्ट मंथ का देखें? अच्छा, बैक डेट का ठीक है, मई का दिखा दीजिए। या मई इसको का हम दिखा लोग अभी सकता हूँ। जुलाई कर दें तो? जुलाई, हाँ जुलाई का कर सकते हैं। यस, तो दैट एक इज आइडिया ऑल्सो लग पॉसिबल। जाएगा कि जुलाई में कितना अभी हाँ मिल रहा है, हाँ, अगर जुलाई कोई करता है तो। क्योंकि अभी प्रॉब्लम ये है कि आपका वॉलेटिलिटी जो है बहुत कम हो गया, तो उसके हाँ कारण भी हाँ। कम मिल रहा है। और अभी लॉट साइज भी कम हो गया, 50 हो गया, तो थोड़ा डिफरेंसेस हो सकता है अभी इससे। राइट 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 राइट। सो अगर जुलाई मेरे को करना है तो मैं 15,100 का पुट बेचूंगा। ठीक है। और 300 पॉइंट्स और करेंगे 300 वो। पॉइंट मतलब मैं 14,800 का कॉल पुट ले लूंगा। ठीक है। यस। और नीचे में मैं कॉल बेचूंगा 20 डेल्टा, मतलब ओके। 16,400 का। ओके। और 16,700 का मैं कॉल ले लूंगा। यस। परफेक्ट। अब इसका अपने पे ऑफ देखें। ये भी कम पर इसलिए है क्योंकि ये लॉट साइज 50 है। हाँ, लेकिन इसमें मार्जिन रिक्वायरमेंट बहुत कम हो गया, ओनली थर्टी सेवन अब थोड़ा थाउजेंड कम हो गया क्योंकि लॉट साइज थोड़ा कम हो गया, ये थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। देखना होगा कि थोड़ा ज़्यादा भी हो सकता है। सो एनीवेयर अराउंड 40,000, ओ, क्योंकि बट दिस इज आपका, 50 का लॉट साइज पे। या हाँ बिकॉज दिस इज 50 लॉट साइज हाँ हाँ जुलाई हाँ। में। तो दिस इज वेरी गुड। अब 37 में प्लस सपोज मुझे 10,000 और ऐड करने हैं, मैक्सिमम लॉस, मतलब हाँ, एटेंसिवली से 50 में। 50,000 रुपया मेरे को रखना होगा। यस। 50,000 पे मुझे 5,000 रुपया मिलता है, मतलब 10% रिटर्न है। उसमें मैं आधा हाँ। अपना प्रॉफिट ले लूंगा। परफेक्ट है। यस, 5%। परफेक्ट है। हाँ। तो या ओवरऑल एज ए सेट कि हमेशा टारगेट करते हैं हम 5% ऐसे। परफेक्ट। परफेक्ट है। सो मोर और लेस थोड़ा इधर उधर होगा, डिपेंडिंग ऑन आईवी एंड ऑल दोस थिंग्स, बट एनीवेयर अराउंड 4 to 6 7 भी हो सकता है। तो एवरेज 5% मान लीजिए। जी जी जी, समझ गया वो मैं। ठीक है। तो अभी आते हैं एडजस्टमेंट। ठीक है। हम्म तो मान लीजिए आप अपना स्ट्रेटजी बना लिए। तो अभी एक एडजस्टमेंट मेथड बताऊंगा, एक ही बता रहा हूँ इस समय। तो हम्म। ये बहुत अच्छा एडजस्टमेंट मेथड है। तो इसमें क्या करते हैं, ये थोड़ा मैं आपको पहले ये दिखाता हूँ यहाँ पे। ठीक है? तो अगर आप यहाँ पे ग्रीक्स में जाएंगे, ये पे ऑफ चार्ट है, ग्रीक्स टैब है, तो यहाँ पे जाएंगे, आपका डेल्टा जो है जीरो है, यानी डेल्टा न्यूट्रल है। ये तो ओके। वी आर एक्सपेक्टिंग, राइट। जी जी तो ये डेल्टा जीरो होना चाहिए। तो जी। आप नॉन डायरेक्शनल। ठीक है। तो आप एडजस्टमेंट तब करेंगे, तब ये जो ग्रीक्स पोजिशनल ग्रीक्स डेल्टा जो है, जब +15 या -15 चला जाता है, ओके यानी जब अगर मार्केट ऊपर चला जाता है, तो आपका डेल्टा -15 चला जाता है, तब एडजस्टमेंट करना होगा। और वैसे अगर मार्केट नीचे चला जाता है और आपका डेल्टा +15 हो जाएगा, तब आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। तो इस डेल्टा को आपको ऑब्जर्व करते रहना पड़ेगा, और जब भी वो 15 के ऊपर चला जाता है, तो आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जी। तो एडजस्टमेंट क्या है, ये मैं बताऊंगा। एक बार रघु प्लीज डोंट माइंड, एक बार वापस ये से ग्रीक्स में, एक बार मुझे ओके। मौका मिला है तो आपसे ये प्रश्न पूछता हूँ। डेल्टा ओके। तो मुझे समझ में आ गया कि 0.08 है, इसका मतलब 8%। अगर 8% ऑप्शन का प्रीमियम का इम्पैक्ट आएगा उसके वैल्यू पे। एम आई करेक्ट इन दैट असेसमेंट? नो नो, ओके। तो एक्चुअली ये जो है, ये एक्चुअली ऑलरेडी परसेंटेज में है। ये ओ एक्चुअली अच्छा। परसेंटेज में दिखा रहे हैं। ओके अगर आप ओके। डेसिमल में देखेंगे तो 0.0008 हो जाएगा।
ओके ओके, सो मतलब बहुत ही इनसिग्निफिकेंट इम्पैक्ट है हाँ, डेल्टा का। इनसिग्निफिकेंट, इट्स नथिंग अब बेसिकली। थीटा में चलते हैं, तो थीटा 140.7 का क्या मतलब हुआ? अच्छा, तो ये तो थीटा जो है परसेंटेज में है। जी। ये ऐसे मान के चले जा रहे हैं कि 100 लॉट समझ के कैलकुलेशंस करते हैं ये सब का, फॉर हम्म परसेंटेज कैलकुलेशन। ओके, तो हम्म अगर आप ग्रीक्स इन रुपीस कैलकुलेट करना है, तो हम्म। आप इसको क्लिक करिए तो आपको रुपीस में बताएगा थीटा क्या है। दिस इज द अच्छा। करेक्ट करेक्ट वे ऑफ लुकिंग एट थीटा। तो हाँ हाँ। इसमें ये बता रहा है कि अगर इस स्ट्रैटेजी में आप अगर मार्केट में कुछ नहीं होता है, कुछ चेंज नहीं होता है, तो हाँ। एवरी डे आप इस स्ट्रैटेजी में आपको 70 रुपीज बनेगा एट दिस पॉइंट ऑफ समझ टाइम आज। समझ गया। इट्स ओनली फॉर गॉट इट। टुडे। तो क्योंकि ये जो थीटा जो है इन द बिगिनिंग ऑफ एक्सपायरी बहुत हाँ स्लो डीके होता है। और हाँ। जैसे जैसे आप एक्सपायरी के पास जाते हैं, ये जो हम्म 70 रुपीज का जो है, ये 150 जा सकता है, 200 300 भी जा सकता है। वो या। एक्सपोनेंशियल हो जाता है जो थीटा डीके जो। तो अभी स्टार्टिंग है तो बहुत स्लो डीके होता है। तो इसीलिए इसीलिए जब लोग सजेस्ट करते हैं, अगर अगर आपको लॉन्ग ऑप्शन खरीदना है, तो आपको बहुत पहले खरीदना है, क्योंकि आपका थीटा डीके बहुत स्लो होता है लॉन्ग ऑप्शन में। जब आप एक्सपायरी से बहुत पहले है। या। और आपको गॉट इट। वेगा है, वेगा वेगा क्या बोल रहा है? जैसे अब मैंने बताया था कि इसमें इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का इफेक्ट रहता है। तो ये हाँ। वेगा जो है, ये आपको बताता है कि इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी का क्या इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, हम्म। यहाँ पे ये बोल रहा है कि -534 है। इसका मतलब, अगर आपका आईवी 1% गिर जाता है, अगर निफ्टी का विक्स 1% गिर जाता है, तो आपका स्ट्रैटेजी इतना लूज करेगा, 534 ओके रुपीज ओके लॉस में चला ओके। जाएगा। और सेम वे में, गॉट। अगर आपका आईवी गिरेगा तो यू गेन 534। अगर आईवी हाँ। इंक्रीज होगा, देन यू लूज 534 रुपीज। गॉट इट इट गॉट इज इट। द सो यू गेट ऑल दोस इंफॉर्मेशन ऑन दिस। ओके। डन। ये हो गया। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप ये है कि जब भी आपका पोजिशनल डेल्टा जो है, अगर 50 डेल्टा के ऊपर या नीचे चला जाता है, तो आपको एडजस्टमेंट करना होगा। तो हम्म एडजस्टमेंट कैसे करेंगे? आप रोल अप करेंगे या रोल डाउन करेंगे जो अनटेस्टेड स्प्रेड है। तो अनटेस्टेड स्प्रेड यानी इसमें स्प्रेड आपका पुट स्प्रेड हो सकता है, कॉल स्प्रेड हो सकता है। तो हम्म अगर अगर आपको रोल डाउन करना है, तो आप कॉल स्प्रेड रोल डाउन करते हैं। अगर रोल अप करना है, तो आप पुट स्प्रेड को रोल अप करते हैं। मैं आपको हम्म दिखाऊंगा। तो ये क्यों करते हैं? ताकि जब आप रोल अप या रोल डाउन करते हैं, आप थोड़ा क्रेडिट मिलता है आपको। हम्म ठीक है, थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है उसमें, हम्म क्योंकि हम आप और थोड़ा क्लोज जा रहे हैं, क्लोज टू द योर अंडरलाइंग प्राइस। तो आपको हम्म थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है उसमें। इसके कारण हम्म। हमें ये रोल अप या रोल डाउन करना होगा जब आपका डेल्टा ब्रीच होता है। ओके। तो ये क्या करता है? इट इंक्रीजेस द प्रॉफिट जोन। और जब रोल अप करते हैं या रोल डाउन करते हैं, उस समय वो सेम क्राइटेरिया रखना है, कौन सा डेल्टा को शॉर्ट करना है और कितना विड्थ आपका विंग होना चाहिए। फिर से हम्म 20 डेल्टा को शॉर्ट करना है और 300 पॉइंट विड्थ को पॉइंट अवे हेड्ज लेना है। हम्म। ये कांस्टेंट रहेगा आपका। ठीक है। और ये आप एडजस्टमेंट करने के बाद फिर भी थोड़ा न्यूट्रल, थोड़ा आपका डेल्टा जो है थोड़ा प्लस और माइनस फिर भी रह सकता है। हम्म और जब रहता है उतना जो भी, वो आपको न्यूट्रलाइज करना है। न्यूट्रलाइज मतलब आप उसको जीरो लेके जाना है डेल्टा को। हम्म हम्म जैसे ये जो मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा तो सब क्लियर हो जाएगा आपको। इसको जीरो करना है। जैसे अगर -15 चला गया, आपने हम्म एडजस्टमेंट किया, तो ये फिर भी जीरो नहीं गया, तो इसको जीरो करने के लिए तब आप एक लॉन्ग ऑप्शन लेना होगा। सो लॉन्ग हम्म ऑप्शन डिपेंड करेगा, कॉल ऑप्शन लेना है, पुट ऑप्शन, डिपेंड्स ऑन मार्केट किस तरफ गया, नीचे की तरफ गया या ऊपर की तरफ गया। हम्म तो मैं आपको बताता हूँ कैसा है। ठीक है।
उसके बाद अगर इस लॉन्ग पोजीशन को हम एग्जिट कर देंगे अगर इसका पोजिशनल डेल्टा फिर 5 डेल्टा के नीचे चला जाएगा। अ, हम्म अ, ठीक है, मैं इसको बताता हूँ नहीं तो थोड़ा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। ठीक है। हम्म। तो बाकी का मैं है ना रूल्स बाद में ही बताता हूँ। तो जी, पहले एग्जाम्पल में समझा। हाँ, या तो पहला एक दो फर्स्ट रूल्स जो है वो एकदम क्लियर हो जाएगा। जी। और ये स्टेप्स जो है तभी करना है एडजस्टमेंट जब आपका स्टॉप लॉस या टाइम स्टॉप लॉस या टारगेट हिट नहीं करता है, तब तक ही करना होगा, नहीं तो एडजस्टमेंट करने की जरूरत ही नहीं है। ओके। ठीक है। तो मैं एक बैकडेटेड एग्जांपल से शुरू करता हूँ उसमें। अ, तो फॉर एग्जांपल मे एक्सपायरी ले लेते हैं हम लोग। मे एक्सपायरी ओके। में क्या हुआ, एकदम एक तरफ चला गया मार्केट। हम्म ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल मैंने बताया था एक मे एक्सपायरी है। तो मैं क्या करता हूँ फ्राइडे बिफोर द करंट मंथ क्या होगा अप्रैल, क्योंकि हमने ये करेक्ट। स्ट्रैटेजी अप्रैल में कर रहे हैं पर ठीक है। मे एक्सपायरी। तो ये जो एक्सपायरी के पहले जो फ्राइडे है उस दिन स्टार्ट करता हूँ मैं। या ठीक है। तो इसमें मैं क्या करता हूँ कि एंड ऑफ डे करता हूँ मैं, मतलब 3:20 के आसपास हम इस स्ट्रैटेजी को स्टार्ट करते हैं। हाँ, हम्म इसमें और एक एडवांटेज ये है कि आपको इसमें हमेशा बैठ के नहीं करने की जरूरत नहीं है स्ट्रैटेजी। ओके। आप सिर्फ 3:30 3:20 या 3:15 या जब जो भी है उस समय आके इसको आप एडजस्ट कर सकते हैं बस एक बार, अगर आपका डेल्टा ब्रीच होता है। ओके। ठीक है। तो अगर हम ऑप्शन चेन लेके आया तो इस समय का ऑप्शन चेन लेके आता है वो, उस समय का हम्म ऑप्शन चेन 23 अप्रैल 3:20। हम्म तो अभी हम चूज करेंगे 20 डेल्टा। ठीक है, रूल्स एकदम कोडिफाइड है तो आपको उतना सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो ये हम्म सेल कर दिया आपने और यहाँ से 300 पॉइंट्स, सो थर्टीन हम्म थाउजेंड टू हंड्रेड आप खरीद हम्म लिए। और उसी तरीके से यहाँ पे 20 डेल्टा आपका। तो एज जैसे मैंने बोला ये पसंद नहीं है ये वाला पार्ट, तो हम 15 टू यही कर 100। सकते हैं या 200 या 100 कोई भी कर सकते हैं। जी। और 300 पॉइंट्स विच इज 500, 15 फिफ्टीन 500। थाउजेंड फाइव हंड्रेड का। हाँ, तो ये लीजिए आपका आयरन कॉन्डर बन गया। जी। ठीक है, एक हो गया पुट स्प्रेड, एक हो गया कॉल स्प्रेड। हम्म देखिए विवेक जी अभी यहाँ पे 7,000 के आसपास दिखा रहा है आपको। जी जी जी। तो इसमें आपका टारगेट मान लीजिए 7,000 है रफली। तो आपका हम्म टारगेट होना चाहिए 3,500 और आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए 3,500। ओके। और मार्जिन रिक्वायरमेंट सेम होगा 65,000 के आसपास। जी। तो इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं, अभी आपका ये पोजिशनल डेल्टा यहाँ पे दिखाता है कि -1.97 है, तो थोड़ा ओके। क्लोज टू जीरो है। तो यहाँ पे भी देख सकते हैं सेम, और या यहाँ पे या भी देख सकते हैं। या ठीक है। तो आप एक दिन आगे बढ़िए। हम्म तो आप थोड़ा लॉस में चले गए मगर आपका पोजिशनल डेल्टा जो है 15 से बाहर नहीं गया। तो जब ओके। तक वो बाहर नहीं जाता है हम आगे बढ़ते जाएंगे, हम्म और जब तक स्टॉप लॉस नहीं हिट करता है अपना। हम्म तो अभी लॉस में है, ठीक है कोई बात नहीं है। ठीक, फिर से मार्केट थोड़ा नीचे आ गया, अब हम्म थोड़ा प्रॉफिट में चले गए, हम्म फिर से प्रॉफिट में आ गए। हम्म तो चलने दीजिए जब तक आपका 15 डेल्टा इफेक्ट नहीं करता है। हम्म अभी कर सकते हैं शायद क्योंकि -13 दिखा रहा है। देखिए अगर आ गया आपका 15 हम्म डेल्टा ब्रिज, तो राइट। यानी अभी यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। अभी हम्म ये ऊपर चला गया तो आप ये हम्म पुट्स को जो है आप ये ऊपर लेके आना है। जब ओके। आप इसको ऊपर लेके आते हैं तो आपको हम्म थोड़ा एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है। जब आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है तो ये आपका जो ब्रेक इवन यहाँ पे है ये थोड़ा और आगे चला जाएगा। ओके। जैसे अभी ये देख लीजिए यहाँ पे 15,291 है। हम्म ये आपका एडजस्टमेंट के बाद कितना होता है आप देख लीजिए। तो एडजस्टमेंट क्या है, आप इस स्प्रेड को रोल अप करना होगा इसमें।
तो अभी ये प्राइस डाल के हम एग्जिट कर देते हैं इसको 13.65 और यहाँ पे 8.4। ठीक है, हम्म अब फिर चले जाते हैं अपना ऑप्शन चेन में और इस बार क्या करेंगे, फिर से 20 डेल्टा स्ट्राइक प्राइस को ढूंढेंगे। तो ओके, 14 14,400 है। ओके ओके। तो आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, सीधा 20 डेल्टा ले लो और उसके नीचे 300 पॉइंट्स। सेल करना था, बाई कर लिए। ओ सॉरी, नहीं नहीं सही है। ओह अच्छा, ओके, सॉरी। ओके, सो 20 14 डेल्टा 1। ये इसके नीचे है, तो 14,100 आपको बाई करना है। जी। तो जब आप रोल अप करते हैं तो आपको एक्स्ट्रा क्रेडिट मिलता है। देखिए अभी या आपका मैक्स प्रॉफिट हो गया 9,258 क्योंकि या आपने एक्स्ट्रा क्रेडिट लिया। क्योंकि यहाँ पे हाँ ऑलरेडी हमने प्रॉफिट बुक कर लिया, यहाँ पे आपको ऑलरेडी हाँ। 3,000 प्रॉफिट बुक कर लिया इस वाले स्प्रेड से। और हम हम्म इनिशिएट कर रहे हैं और नया स्प्रेड, तो इसका भी हम्म क्रेडिट मिलेगा हमको। और इसके हम्म कारण आपका मैक्स प्रॉफिट बढ़ गया अभी। अभी हम्म। जाके देखते हैं आपका ब्रेक इवन आपका कितना था, 219 या समथिंग था। या तो आपका हो गया 323। ठीक है, थोड़ा और राइट आगे चला गया आपका, है ना। राइट। तो अभी आपका पोजिशनल डेल्टा -10 है, तो यानी अभी भी न्यूट्रल नहीं हुआ। तो कैसे न्यूट्रल करेंगे आप इसको, इसको न्यूट्रल करेंगे आप एक 10 डेल्टा कॉल को खरीदेंगे। ठीक है, जब आप हम्म 10 डेल्टा कॉल को खरीदेंगे, 10 हम्म डेल्टा या 12 डेल्टा मान लीजिए, क्योंकि आप हम्म। मैंने बताया था कि 50 स्ट्राइक्स नहीं चूज करेंगे, तो हाँ। थोड़ा इधर उधर चलेगा। तो हम्म तो ये हमने खरीद लिया। तो हम्म जब प्लस प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा को न्यूट्रलाइज कर देता है, जैसे हम्म। प्लस माइनस को न्यूट्रलाइज करता है वैसे हम न्यूट्रलाइज कर दिए इसको। जी। ठीक है, अ, तो यहाँ पे अगर मैक्स प्रॉफिट अनडिफाइंड दिखा रहा है क्योंकि ये ऊपर भी जा सकता है अगर ऐसे छोड़ हम्म, देंगे, तो इसलिए हाँ। अनडिफाइंड है। बट वहाँ तक नहीं जाने देंगे हम। अगर यहाँ पे अगर आप रख के देखेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है 6870, यानी आपका जो ओके। ओरिजिनल मैक्स प्रॉफिट जो था वो बरकरार है हाँ, अभी भी। करेक्ट करेक्ट। ठीक है, अगर ये रीज़न क्या है आप ये लॉन्ग कॉल ऑप्शन खरीदने का, क्योंकि मार्केट ऊपर जा रहा है। हम्म हम नहीं चाहते कि अगर मार्केट ऊपर जाता जाएगा तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। सो दैट इज वाई वी बाई ए लॉन्ग कॉल ऑप्शन टू हैव लिटिल बिट मोर प्रोटेक्शन। ठीक है, ओके तो ओके। फिर से अगर ये 15 डेल्टा ब्रीच करता है फिर एडजस्टमेंट करते हैं। हम्म और एडजस्टमेंट इसमें आपको नेक्स्ट शायद नेक्स्ट वाले का जरूरत पड़ेगा तो बताता हूँ मैं। हम्म। ठीक है, सो फिर से हम प्रॉफिट में आ गए। तो हम इस समय क्या कर रहे हैं, हम सिर्फ थीटा कर रहे हैं। हाँ हाँ। ये थीटा का महिमा है जो हमको प्रॉफिट दे रहा है अभी। सही बात है, 300 रुपये रोज मिल रहे हैं इसके। अब 400 हो गया वो तीन हाँ सौ वेरी का। करता रहता है हाँ। ओके, अभी और एक और बीच हो सकता है ऐसा लग रहा है, देखते हैं। बच गए। अच्छा विवेक जी, एक मिनट। ओह। अभी अपना प्रॉफिट आ गया यहाँ पे, हाँ 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 ऑलरेडी अपना 50% टारगेट आ गया। हाँ तो हाँ आगे हमें हाँ कुछ करना भी नहीं है इसमें। हाँ तो जब हमने स्टार्ट किया है 23 अप्रैल को स्टार्ट किया है, तो ट्वेंटी हाँ। थ्री अप्रैल को आपका 23 अप्रैल नेक्स्ट, हाँ आपका प्राइस था 14,341 हाँ। और अभी कहाँ पे है, 14,941, यानी 600 पॉइंट्स मूव किया। उसके हम्म बावजूद भी हम लोग अपना टारगेट हिट किए।
और वो एडजस्टमेंट नहीं करते तो पैसे लग जाते। एडजस्टमेंट नहीं करते हैं तो एक काम करते हैं अभी, इसको, ये तीन चीज़ को डिलीट करते हैं, छोड़ देते हैं कि क्या होता है, या जस्ट टू सी व्हाट हैपेंस। तो मैं क्या करता हूँ, इसको 0 0 कर देता हूँ, तो करंट प्राइस ले लेगा वो। ओके। एडजस्टमेंट नहीं करते तो फिर भी 4316 रहता। ओके। मगर ये हमको नहीं पता कि मार्केट कहाँ जाएगा। सो सही वी बात शुड है। बी रेडी इन सच ए केस कि ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये एडजस्टमेंट करना जरूरत पड़ता है। नहीं तो ये 15 डेल्टा का क्या लॉजिक है रघु भाई? 20 क्यों नहीं हो 15 सकता है? डेल्टा का लॉजिक ये है कि अगर एडजस्टमेंट नहीं करते हैं, हम्म। तो क्योंकि जब फिल्टर 15 डेल्टा हो जाता है तो आपके यहाँ पे जो क्रेडिट जो है, हम्म। यहाँ पे बहुत मतलब पूरा खत्म हो गया। जो भी यहाँ से इस वाला पुट स्प्रेड से जो भी हमको मिलना था मिल गया ऑलरेडी। जी। ठीक है। तो अगर मार्केट ऊपर चलता जाएगा, ठीक है, तो ये वाला जो स्प्रेड जो है ये लूज करता जाएगा। हम्म। मगर ये वाला स्प्रेड जो है प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा। अगर ये लूज करता जा रहा है, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहे हमको। तो इसको इसका प्रोटेक्शन बढ़ाने के लिए इस पुट पुट स्प्रेड का, तो हम ये थोड़ा ऊपर लेके आते हैं, ये रोल अप करते हैं। उसके कारण क्या होता है, हमको ज़्यादा क्रेडिट मिलता है और उसके कारण हम बच सकते हैं। फॉर एग्जांपल नहीं, मान लीजिए कि, अगर मान लीजिए कि अगर फॉर एग्जांपल ये मैं एक मिनट, नहीं, मैं मेरा जाता क्वेश्चन था हूँ जहाँ पे, 15 का क्या लॉजिक है रघु भाई? ये 20 क्यों नहीं? आपने हाँ 15 टेस्ट 20 किया की, था हाँ क्या? एग्जैक्टली करेक्ट क्वेश्चन है। तो इसका लॉजिक ये है कि अगर 20 करते हैं तो हम एडजस्टमेंट बहुत लेट कर रहे हैं, अच्छा। तो ऑलरेडी मार्केट दौड़ चुका है। ठीक है। अगर 10 डेल्टा है, समझिए 10 डेल्टा पे क्यों नहीं किया या 5 डेल्टा पे क्यों नहीं किया, अगर वहाँ पे उतने में करेंगे तो आपका एडजस्टमेंट ज़्यादा हो जाएगा। सही है। तो हमें ज़्यादा लेट नहीं करना चाहिए और ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं करना चाहिए, तो ये बैलेंस होना चाहिए। सही तो है। ये जरूरी जरूरी नहीं है 15 डेल्टा है, ये मेरे एम्पिरिकल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 15 डेल्टा अच्छा है। क्योंकि अगर आप अब थोड़ा फिर से वापस जाते हैं, मैं आपको जी। इसी का और थोड़ा एडजस्टमेंट दिखाता हूँ। हम्म। उस पॉइंट में जाते हैं फिर एक बार, जहाँ पे हमने 15 डेल्टा ब्रीच किया, तो आपको बताता हूँ मैं, जहाँ पे हमने एडजस्टमेंट किया था उसका, जी। या इस पॉइंट पे, सॉरी, तो इस पॉइंट पे हमने एडजस्टमेंट किया था, -17 डेल्टा जब जी। आया था। तो जी। अब आप देख लीजिए यहाँ पे, यहाँ कुछ बचा नहीं है, इसमें सही आपका बात। कुछ प्रीमियम बचा नहीं है इसमें। कितना, 5 रुपए का प्रीमियम है। तो मान हाँ। लीजिए ये ऊपर चलता जाएगा, तो ये कॉल प्रोटेक्ट नहीं, मतलब ये जो पुट स्प्रेड जो है, ये प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगा हमको। समझ तो गया मैं, इसीलिए समझ। इसको थोड़ा ऊपर लेके आना है। इसका स्ट्राइक प्राइस भाई एक बार डेल्टा दिखाई ना, ये वह ग्रीक्स में। हाँ, तो आप यही बोलना चाह रहे हैं कि इसका डेल्टा देखिए, हाँ बहुत कम है। बहुत कम डेल्टा है, तो ये प्रोटेक्ट नहीं हाँ। करेगा। बल्कि ऊपर वाले का डेल्टा हाई है तो और ऊपर जाता रहेगा, तो ये 15,200 का कॉल जो बेचा हुआ है उसमें हम लोग का हाँ। बहुत पैसा लगेगा। यस एग्जैक्टली। समझ गया मैं। इसी बहुत। से उसी का कारण उसको रोल अप करना पड़ेगा। रघु भाई बहुत प्यारा टूल बनाया आपने, बहुत प्यारा। ये एकदम क्लियरली थैंक यू। लगता है कि एक ट्रेडर ने अब बनाया है, क्योंकि जहां पे जो डेटा पॉइंट दिखानी चाहिए ना, एकदम आपने वहां दिखा रखा है, और कोई तामझाम नहीं है। इसको यस। जैजी बनाने की कोशिश ही नहीं की, एकदम सिंपल। मतलब मुझे लगता है जैसे हम लोग स्टॉकेज बनाया ना, एकदम सिंपल रखा है, वैसे आपने इसको इतना प्यारा रखा है। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस। थैंक यू थैंक यू। तो मैं आपको थोड़ा इसी को थोड़ा आगे बढ़ा के बताता हूँ। जी। जी। तो और एक एडजस्टमेंट इसी में, तो फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि
तो यहाँ पे अपने हम लोग ने एडजस्टमेंट किया था, तो फिर एक बार रिपीट कर दे, सॉरी उसके लिए। जी। नहीं नहीं, क्योंकि कोई नहीं, मुझे मैं वापस सॉरी दिखाना है तो। से आपको रिपीट करना पड़ रहा है मेरे कारण, ये सॉरी। हाँ, नहीं नहीं। पर तो कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर हुआ उससे। हाँ, तो अभी पुट ऑप्शन 20 डेल्टा। जी। सो अब अगर आप यहाँ पे देख लीजिए, आपको अब यहाँ पे क्रेडिट ज़्यादा मिल रहा है, क्योंकि रोल अप कर रहे हैं हम लोग। जी। तो ऑलमोस्ट हमको मिल रहा है 40 रुपीज़ का एक्स्ट्रा मिल रहा है हमको, ये रोल अप करने के कारण। ठीक है। तो ओके। तो अगर आप फिर से वापस वहाँ पे जहाँ पे अपना टारगेट हिट हुआ वहाँ पे चले जाते हैं, तो मान लीजिए, आई मीन कुछ ट्रेडर्स ऐसे होते हैं कि उसमें पूरा एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। मैं भी कभी कभी हो जाता हूँ ग्रीडी, कि हम्म। मुझे पूरा चाहिए। तो हम्म। तो देखते हैं कि क्या, उस अगर ऐसा होता है तो क्या कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, जैसे अपना टारगेट यहाँ पे हिट हो गया, और हम्म। मान लीजिए आपने नहीं लिया अपना अपना टारगेट। हम्म। 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, तो मान लीजिए यहाँ पे आपने नहीं लिया अपना, प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया यहाँ पे। हम्म। और एक्चुअली मैं भूल गया था कि हमको एक लॉन्ग कॉल ऑप्शन लेना था। नहीं, सॉरी। आपने लिया था लॉन्ग कॉल ऑप्शन। और वो लास्ट टाइम लिया था, इस बार नहीं लिया था। ओह, अच्छा अच्छा। तो 1 मिनट। हाँ, अब लेना था। यस करेक्ट। यस। यस, यहाँ पे लेना है। यहाँ लेना है, करेक्ट। तो यहाँ पे आप 10 डेल्टा कॉल लीजिए। हम ऐसे भी कर सकते हैं कि जरूरी नहीं है कि लॉन्ग कॉल ऑप्शन लेना कंपलसरी है। इट्स ओनली फॉर हम्म। एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन। अगर आप नहीं लेना चाहते अभी तो भी चलेगा वो। हम्म। ओके। तो हम देख रहे हैं कि अगर 15 डेल्टा ब्रीच करेगा कि नहीं। तो यहाँ पे आपका मिल गया था, देखिए, अगर ये आपका डेल्टा ब्रीच हो गया, और आपका शॉर्ट स्ट्राइक जो है वो भी टेस्ट हो गया कॉल ऑप्शन का। तो अभी यहाँ पे हम्म। क्या कर सकते हैं कि ये पूरा चीज़ को रिमूव कर देना चाहिए हमें। ये पूरा पोजीशन को मूव करके हमें एक नया पोजीशन डालना चाहिए। जब अगर ऐसा होता है, अगर आप प्रॉफिट बुक नहीं किए, अगर मान लीजिए किसी और एक्सपायरी में अगर ऐसा सिचुएशन आता है, तो तब क्या करेंगे? तब ये करेंगे, जब आपका ये शॉर्ट स्ट्राइक जो है 15,200 कॉल का जो शॉर्ट स्ट्राइक है, जब वो टेस्ट हुआ है, तो आप ये पूरा पोजीशंस को निकाल के एक नया आयरन कॉन्डोर डालना होगा आपको। गॉट इट। ठीक है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपका हो गया 122। जस्ट टू टू मोर मिनट्स एंड खत्म कर देंगे। सो इसीलिए इम्पोर्टेंट है, अगर आपका टारगेट हिट होता है तो क्लोज कर दीजिए। नो नीड टू बी ग्रीडी। हम्म। ऐसा अक्सर होता है कि आई मीन मेरे से होता है, बहुत सारे ट्रेडर्स से ऐसा होता है कि दे वांट मोर। तो यहाँ पे ऐसा हो गया। ठीक है। तो आप एक नया आयरन काउंटर फिर से इनिशिएट कर रहे हैं अभी। तो मान लीजिए ये 20 डेल्टा एकदम एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि ये 950 स्ट्राइक है, तो 15,000 ले रहा हूँ मैं। या। अ, तो और कुछ कुछ लोग इसको लेके बहुत एग्जैक्ट हो जाते हैं कि एकदम 20 डेल्टा, ऐसा जरूरी नहीं है एकदम हम्म। 20 डेल्टा चाहिए। थोड़ा इधर उधर भी हो सकता है, नॉट ए इश्यू।
Right. और जैसे जैसे आपको एक्सपायरी के 15,400. क्लोज चले जाते हैं, Hmm. यस 15,400, सॉरी ये थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे। ओके 15,100. Yeah. Sorry. Yeah. या सो देखते हैं कि ये कैसा देता है। तो ये हो गया आपका नया काउंटर। अभी भी आपको 5,265 मिल सकता है। तो देखते हैं आगे जाके क्या होता है। मान लीजिए जब आपने वो 15,000 का जो लॉन्ग कॉल लिया है, 15,600 का जो लॉन्ग कॉल लिया है यहाँ पे, Yeah. अगर वो नहीं लेते हैं तो हम लोग और भी ज़्यादा लॉस कर सकते थे इसमें। अगर Hmm. अनएडजस्टेड छोड़ देते, अगर वो लॉन्ग कॉल नहीं देते, और भी Yeah. ज़्यादा लूज कर सकते थे। देखिए आप उस एडजस्टमेंट करने के बाद फिर से आप अपना टारगेट हिट कर लिए। Yeah. 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 तो ये है अभी आपका कितना पॉइंट्स हो गया, 14,300 से 15,200। सो नाइन Hmm. हंड्रेड पॉइंट्स मूव करने के बाद भी हम इस स्ट्रैटेजी से प्रॉफिट निकाल लिए, टारगेट हिट किए। Yeah. तो Yeah. Yeah. सो 5%, 5 to 6% इजीली आप इसमें बना सकते हैं, इवन इफ मार्केट मूव्स इन वन डायरेक्शन। तो विवेक Interesting. जी ये है इस स्ट्रैटेजी का, ये वीकलीज का बहुत सिमिलर है, बस Yeah. इंस्टेड ऑफ 30-40 डेज जो मंथली में करते हैं, वीकलीज में 10 डेज पहले करते हैं। Yeah. और बाकी सब सेम रूल्स है। और थोड़ा विड्थ का जो विंग है, लास्ट वीक Hmm. में 200 पॉइंट्स करना है, बस उसके अलावा एवरीथिंग इज सेम वीकलीज के लिए। But what would you prefer? Monthly वाले में करना चाहिए कि वीकली वाले में? सो फॉर एग्जांपल आई एम ए पर्सन हु डोंट हैव मच टाइम टू डू लाइक ऑब्जर्व वीकलीज, जो बहुत बहुत वॉलेटिलिटी हो सकता है वीकलीज में। Hmm. जितना मंथलीज में पोजिशनल रहता है मेरा, तो उतना आई आई पर्सनली प्रिफर मंथलीज, बट Okay. दिस कैन बी डन इन बोथ। आई मीन वी हैव डन Okay. दिस इन बोथ। माय पर्सनल प्रेफरेंस इज मंथली, बट the rules are same for both monthlies and weeklies. It will work in weeklies Okay. as well. The only Okay. change is that 10 days पहले स्टार्ट करना है, और एक लास्ट वीक में 200 पॉइंट विड्थ का विंग मेंटेन करना है इंस्टेड ऑफ 300 पॉइंट ऑफ विड्थ इफ देर इज ए एडजस्टमेंट रिक्वायरमेंट। Yeah. Got it. तो Got it. ये है विवेक जी आयरन कॉन्डर का कि कैसे एडजस्टमेंट करना है। और अगर फॉर एग्जांपल आपका इंस्टेड ऑफ ये तो ऊपर चला गया मार्केट, अगर नीचे चला गया तो आप एग्जैक्टली ऑपोजिट करेंगे। Opposite आप कर कॉल लो. स्प्रेड Correct. को नीचे लेकर आएंगे और पुट लॉन्ग पुट ऑप्शन को खरीदेंगे, और सेम सेम एडजस्टमेंट्स, मिरर एडजस्टमेंट्स करेंगे Got it. इसमें आप। Got it. Great. So I think this is pretty sorted. अब बाकी आपने इतना अच्छा बेस बना दिया है कि अब इसके ऊपर तो लोगों को खुद भी, और people have to do it, practice it, और ऑप्स्ट्रा भी अवेलेबल है लोगों के पास पे, तो what best they can get, knowledge भी मिल गया, टूल भी मिल गया जिससे वो काम कर सकते हैं. Now people have यस to just dive in and try it, पेपर ट्रेड कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए. ऑप्स्ट्रा में बैक टेस्टिंग भी अवेलेबल है, और फ्रंट में थोड़ा टेस्ट ट्रेड करके देखिए हाउ इट वर्किंग फॉर यू, and then accordingly do give a feedback to Raghu. Raghu, are you there on Twitter? यस What's the Twitter इट्स handle? इट्स रघुनाथ अंडरस्कोर TL। आई विल पुट वन, सॉरी। So thank you for attending the session. Yeah, Mine thank is you, Raghunath Raghunath. underscore TL. Okay, Raghunath underscore PL. So please follow him on Twitter, and definitely you can ask him questions. He's a very generous person, and he knows that what answer he has to give to right guys. So feel free to connect with Raghu. And Raghu, this is part one of this face to face where we talked about one strategy.
Now the part 2 is going to be more deep dive into adjustments. This was great to know about how to adjust in one strategy. But अगर किसी ने भी ऑप्शंस में कुछ भी किया है तो एडजस्टमेंट को वो कैसे यूज कर सके ताकि अगर कोई प्रॉब्लम हुआ उस स्ट्रेटजी में तो उससे वो स्मूथली निकल पाए, इस पे थोड़ा और डीप डाइव करेंगे इन नेक्स्ट वीडियो. Yes. We will talk about how to repair your strategies, some simple strategies. जैसे कोई लॉन्ग कॉल ऑप्शन हो या लॉन्ग पुट ऑप्शन हो, उसको कैसे रिपेयर करेंगे अगर आप ट्रबल में चले जाते हैं, तो उसको हम नेक्स्ट एडिशन में देखेंगे उसको. Fantastic. Thank you. So thank you, friends. Big thanks to Raghu for recording this one. So next video में we will see you for another set of knowledge, full knowledge, and do visit Opstra. It's a phenomenal platform. I am also using it. तो मेरा कोई commercial interest नहीं है, but मैं आपको बता देता हूँ कि it's a very interesting platform, just like what Stockage is doing, Opstra is doing for options, and Raghu is a great guy to connect with. So see you guys. Thank you, Raghu. See Thank you you. very soon. Thank you, Vivek ji, for giving the opportunity. I hope this will be very helpful to your viewers, and they'll be able to implement in their trading these kinds of strategies. Thank you. I hope so. I hope so. Thank you. Bye bye.